here, and it is there to motivate or reach the science up to the general community, general people. Under this program, Jigyasa is one of the major event in which our students are encouraged to enjoy the festival of science. So today we are going to have joy to celebrate the success of science as well as decide the pathway where science will go. We are happy that today to motivate these young children, young mind, we are having with us organizers of India International Science Festival. I would like to request our beloved director, Professor A.K. Mishra sir and Dr. J.K. Pandey sir to accompany chief guest Sri Parveen Ramdas and Mayuri Datta madam up to the dais. Sir, please. Thank you, sirs and madam. We have tradition to start an event by lighting the lamp. So I request the dignitaries to light the lamp. थैंक यू सर एंड मैडम। हमारे यहाँ अपने अतिथियों को फ्लावर बुके और बुक के द्वारा सम्मानित करने की परंपरा है। इसी क्रम में मैं निदेशक महोदय से अनुरोध करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि श्री प्रवीण रामदास सर को बुक एवं फ्लावर बुके से सम्मानित करें। साथ ही मैं सर से आग्रह करूंगा कि मैडम मयूरी दत्ता को भी स्वागत फ्लावर बुके एवं बुक के साथ करें। Thank you, sir. Now I would like to request our beloved director, Professor Arvind Kumar Mishra, sir, for his welcome address. Sir, please. Thank you, Dr. Vivek. A warm welcome to everyone and a pleasant good morning. Honorable Sri Praveen ji, Secretary Vibha, National Secretary Vibha, and Madam
Mayuri Datta, Mrs. Mayuri Datta, Dr. J.K. Pandey, my dear colleagues, lovely students, all the students, parents, teachers, research scholars, persons from present media. It's my honor and privilege to welcome you all inside the premises of CSIR-CIMFR. As you all are aware, in Jharkhand, we have two CSIR laboratories. One is CSIR-CIMFR, another one is CSIR-NML Jamshedpur. And we are really privileged to have with us today Sri Praveen Ramdas ji, who all the way traveled from Delhi, and his travel that too, very late night he reached in here, and in the last few days the winter has really set in after the rains. We had few spell of rains. After that, it's really chilling cold, and he had to travel in the midnight. So we are really, really thankful to Sri Praveen ji that he took off his time and then he is with us. Today we are having this outreach program of India International Science Festival. आई एम नॉट श्योर बच्चों, आपको पता है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल क्या है? कभी सुने हैं इसके बारे में? हाँ ना? नहीं सुने हैं, कोई बात नहीं है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ये 9वां संस्करण है। must be mentioned somewhere here also, might be. So India International Science Festival is a big festival which is being organized, wherein the students, researchers, teachers, scientists, innovators, science enthusiasts, everyone gets together at one place, wherein you got an opportunity to exchange your ideas, to share your knowledge, and then create a network. And this network is very much required as you grow up in your career, and when you get on to become an innovator, to get on to become as a startup, as an entrepreneur, as a scientist. So you need to know who is best in the different areas of research. Say you have picked up one project and you are working on that project, and then you are, because as a stand alone, if you feel that you will be knowing or you will be the best of computer science, you will be the best of IT, you will be the best of electronics engineering, you will be the best of electrical, mechanical, mining engineering, mineral processing. So if you think of that, you will be having the knowledge of all engineering and sciences discipline, probably it will be very difficult. It's impossible for you to become the master of all. So while conducting the research, or while working on a project, sometimes it becomes so difficult that you do not know whether you will be succeeding in that or not. Then at that point of time, you will know, because of your network which will be created through India International Science Festival, that yes, I know there is one student or one researcher who is at such and such location and he is the best in that particular area. So you can immediately catch hold of him and he will bail you out with the problem with which you might be struggling. So this is the best platform, and there will be अभी एक presentation भी होगा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के बारे में, जिसमें 17 different events are there. और वहां यदि आप लोगों को जाने का मौका मिलता है, जरूर जाइए, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो शायद विश्व में एक अनोखा है, अपने आप में अनोखा है, जिसमें हर एक क्षेत्र के
not only mining, fuel sciences, agriculture sciences, nuclear sciences, हर क्षेत्र के आप लोगों को रिसर्च, जिस एरिया में रिसर्च हो रहा है और जिस दिशा में विश्व जा रहा है, because globally we need to be, that we need to be aware of where the global research is moving on, and then we need to stand of our own. We need not to be dependent on them, but we will be standing of our own, for which our own research, because I'm not sure आप लोगों को कितने लोगों को पता है, एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है जिसमें हमारा स्थान 40वां है out of 139 countries. That is a big achievement. And this has happened very first time in the history of India और भारत, जहां हम 40वें स्थान पर हैं, और ये पिछले 2 साल से हम 40वें स्थान पर हैं, और हमारी स्थिति पहले हम 89th पोजीशन पे थे, 89 से हम 40वें स्थान पर पहुंचे हैं, और हम आगे भी और इम्प्रूव करेंगे। ये तभी संभव होगा जब आपकी भागीदारी होगी, जब आप आगे बढ़कर आएंगे। सो आप जरूर पार्टिसिपेट करिए। यह भारत सरकार का एक पहल है, माननीय प्रधानमंत्री जी की एक पहल है, जिसमें भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इन सभी की भागीदारी है, और जिसमें DBT इस वर्ष इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो इसमें यदि आप भाग नहीं ले पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप सभी जितने भी दिन कार्यक्रम होंगे उनका टेलीकास्ट होगा, आप उनमें जरूर भागीदारी करिए, सो दैट यू विल कम टू नो कि हमारे भारतवर्ष में हो क्या रहा है और किस दिशा में हम जा रहे हैं। और यह एक पक्की बात है, साइंस के बगैर ग्रोथ, जो ग्रोथ चाहिए देश में और जो डेवलपमेंट चाहिए, जो एक्सपेंशन चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। ये आप सब लोग जानते हैं, समझ चुके हैं अब तक, क्योंकि कोविड-19 के समय एक ऐसा समय था जब सब लोगों ने रियलाइज किया द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस, द इम्पोर्टेंस ऑफ science and technology, the importance of research. When the whole world was struggling hard to get in the vaccines, India not only came forward to develop vaccine of its own, but we provided vaccine to all the needy countries wherein they were struggling to get in vaccine. So that was the time, apart from the vaccines, getting the medicines as well. And at that point of time, the enough of oxygen plants were not available with us. So that was the time, enough of PPEs were not available. It was science with which we came up and we stood, and then we could come out of that pandemic. So that is what we had seen. And Chandrayaan-3 landing is known to everyone, what success we got in. So it is science and technology with which, and all the developed countries, if you look up US is number 1, and that position it has gotten because of science and technology, because of the technology it has gotten, they are at number 1, and they have created an ecosystem wherein they have the system which they have developed, wherein the best brains of the world are being attracted, and that is why they are at number 1. The same scenario is there. Indian students, the best students, were getting into US for doing their PhD. Now we do have an ecosystem being created in the country, wherein PMRF is there, Prime Minister's Research Fellowship, wherein the fellowship which is being given to the other students, it is much higher, wherein the best brains can be retained in the country. So ये एक अमृत काल है जिसमें हम सभी हैं, और ये बहुत ही अच्छा समय आप लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही अच्छा समय है. This is the best time to be a student. If I would be asked by the God that, do you want to have another birth, this is the best time to be in India, because the way the country is growing, the economy is growing, the facilities are there, the infrastructure is there, and so this is the best time to utilize. So I think with these words,
आप लोग जरूर और जरूर IISF के कार्यक्रमों को इंटरनेट ऑनलाइन के माध्यम से, यदि फिजिकली आप अटेंड कर सकते हैं तो नथिंग लाइक दैट, but if by chance, because you might be having the pre-boards and then you might be getting into board exams, some of you, so please join in and then enjoy, rejoice. This is the time when we celebrate the achievements of uh, the country so far as science and technology is concerned. चूंकि आप CSIR सिम्फर के प्रांगण में है, मैं कुछ और बातें बस 2 मिनट आपका लूंगा. The developments which CSIR-CIMFR has done, I'm not sure how many of you are aware of it, but like, you know, when the dump trucks ply in an open cut mine, when it is foggy, like, you know, we had the rains, and then particularly in winter we get in the foggy weather in the mountainous region, and iron ore deposits, most of the deposits in the country are in the mountainous region, so the visibility reduces to hardly 1 meter when it is foggy. Hardly you are able to see. जब fog होता है देख पाते हैं आप, गाड़ी चलाना मुश्किल होता है. So production stops. So our scientists have developed a technology wherein in the foggy weather, the vision enhancement by using the transducers, we have made it from 1 meter to 40 meter. So 40 meter तक जो operator है वो देख सकता है. When with the naked eye you can't see anything, with the help of system you can see up to 40 meters. This is what we have developed and, you know, transferred this to the industry. Apart from this, we developed the rock mass classification system in the country. We were the first to come up with the support system design in the country using the classification system. Pillar strength determination was developed at CSIR-CIMFR, which is being used across the world. Globally, it is being used. Ventilation system, the design of ventilation method was developed in this lab, which is being used across the country. Similarly, हमारे और एक कैंपस है जो डिगवाडी में है, जहां पर कोल के ऊपर रिसर्च किया जाता है. 1946, देयर इज अ स्मॉल वीडियो विच विल शो यू राइट नाउ आफ्टर माय टॉक. उस संस्थान में कोयले, बिकॉज नाउ कोयला यूज करने में क्लाइमेट चेंज, आप लोगों के स्कूल में भी चर्चा होती होगी, टीवी पर काफी चर्चा होती है. सो क्लीन कोल एनर्जी के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस है, और क्लीन कोल में कोयले से बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज कोयले को गैसिफिकेशन में, द सरफेस गैसिफिकेशन वी हैव सक्सेसफुली कंडक्टेड. सो फ्रॉम कोल यू कैन क्रिएट द सिंथेटिक गैस, and after getting the synthetic gas, either you can use it directly for generation of the electricity or power, or you can utilize it for making methanol, or DME you can, or hydrogen from coal. That is what these are some of the projects wherein we are working on. So there is another facility जो डिगवाडी में है. आप लोगों को आमंत्रण देते हैं, वहां पर जरूर आप, ओपन डे होता है, आज भी आप लोगों को एक मौका मिलेगा, संस्थान में जो कार्य हो रहे हैं आप देख पाएंगे. और दूसरी समस्या जो है, भारतवर्ष में हमारा जो स्टील प्रोडक्शन है वो 190 मिलियन टन्स है पर एनम अप्रोक्सीमेटली, और हमारा जो लक्ष्य है वो है 300 मिलियन टन्स का बाय 2030. सो कोकिंग कोल की आवश्यकता होती है, और कोकिंग कोल हम हार्डली जो कोक हम इंडिजिनस कोल से बना पाते हैं वो है 2 मिलियन टन्स, एंड द रिक्वायरमेंट इज अराउंड 61 मिलियन टन्स. सो देयर इज अ ह्यूज शॉर्टफॉल. सो वहाँ एक टेक्नोलॉजी के ऊपर कार्य हो रहा है जिसमें नॉन कोकिंग कोल, सेमी कोकिंग कोल को कोक में कन्वर्ट किया जाएगा. सो उस टेक्नोलॉजी के ऊपर में भी रिसर्च किया जा रहा है. तो ये कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था. चूंकि ये एक रिसर्च संस्थान है, CSIR का इकलौता संस्थान है जहां पर माइनिंग इंजीनियरिंग और फ्यूल साइंसेस में कार्य हो रहा है. इसके अलावा आजकल आप लोग सुनते होंगे रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, जहां पर क्रिटिकल मिनरल्स की आवश्यकता है. बैटरी, यू नो, व्हेन द एनर्जी
storage devices are concerned, we need huge amount of critical minerals. And we are also working on extraction. First is the identification and then the extraction of critical minerals and RE from the waste of mine, that is the waste overburden dumps which is being created from the coal mine, as well as from fly ash. Apart from this, there are few other potential areas wherein we are trying to tap in. So tapping in is very important. You need to tap in that, yes, here is the possibility of getting the critical minerals. And then the next process becomes the extraction of those critical minerals. We are working on that very actively. We have taken up a mission mode project as far as CSIR is concerned. So we are working on that as well. So these are few areas wherein we are working on. जब आप मुंबई एयरपोर्ट पर कभी लैंड करेंगे तो वहां पर आपको सिम्फर के पद चिन्ह दिखेंगे, क्योंकि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका कंसल्टेंट CSIR-CIMFR है, यहाँ के साइंटिस्ट हैं, और वहाँ का पूरा जो कार्य है so far as excavation, rock excavation is concerned, is being executed under the guidance of CSIR-CIMFR scientists, because जहाँ पर वो कार्य हो रहा है उसके पास आसपास जो गांव हैं, जो हैबिटेशन है, उनको सेफ रखते हुए आपको कार्य करना है, और उसके लिए एक टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, एक कंसल्टेंट की आवश्यकता होती है, एक साइंटिस्ट की जिसको पूरी जानकारी हो कि जब हम इस तरह से इस रॉक को एक्सकेवेट करेंगे तो नियर बाय स्ट्रक्चर्स को कोई डैमेज ना हो। और जब कंस्ट्रक्शन का काम एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, जहां पर आप कंक्रीट पोर इन कर रहे हैं और उसके साथ में ही आप ब्लास्टिंग भी कर रहे हैं, तो जब आप ब्लास्ट कर रहे हैं तो इसको डैमेज नहीं होना चाहिए। तो ये सुपर क्रिटिकल कंट्रोल ब्लास्टिंग इज रिक्वायर्ड, जो यहाँ के साइंटिस्ट कर रहे हैं। वैसे ही जब कभी आप कोंकण रेलवे में ट्रेवल करेंगे तो कोंकण रेलवे में स्लोप स्टेबलाइजेशन का कंप्लीट काम CSIR-CIMFR के साइंटिस्टों ने किया है, और जहां पहले बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते थे, रोल ओवर ऑफ स्टोन्स ऑन द स्लोप्स, दैट हैज बीन स्टॉप्ड बाय CSIR-CIMFR साइंटिस्ट, दे हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। उसी तरह से यदि आप किसी बॉर्डर एरिया में, यदि आप लोगों को कभी मौका मिले, आप चार धाम यात्रा पे केदारनाथ, बद्रीनाथ यदि जाएं, या इवन नॉर्थ ईस्ट में त्वांग, जब किसी भी बॉर्डर एरिया में जब आप ट्रेवल करेंगे वहां पर भी footprints of CSIR-CIMFR you will get in, because we are very closely working with Border Road Organization. We are working for the strategic projects of DRDO as well as of Navy and Air Force, wherein these are very, very strategic in nature for the country. And we are very closely working with them and providing the technical solutions for their problem which they are facing in, which otherwise becomes difficult. और अभी न्यूज़ में आप लोगों ने सुना होगा जो उत्तरकाशी में टनल कोलैप्स हो गया था, वहां पर 41 टनलर्स, द वर्कर्स, दोज हु वर एंगेज्ड in the tunneling job, got trapped in, and the rescue had to be done. And our scientists, 3 of our scientists were there non-stop 24/7 all the days, and they helped in execution of the rescue work of those tunnelers. So these are some of the activities I have told you. और एक चीज है, आप यदि किसी रिफाइनरी में जाते हैं, किसी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, किसी अंडरग्राउंड कोल माइन में, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी टेस्टिंग यहाँ की जाती है, इसी लैब में की जाती है, और आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ओनली दे आर बीइंग डिप्लॉयड, अदरवाइज दे कैन नॉट बी डिप्लॉयड, दे कैन नॉट बी अप्रूव्ड। सिमिलरली जब अंडरग्राउंड कोल माइन की बात आती है, उसमें जितने भी पूरे देश में और यहाँ से भारतवर्ष से जितने भी एक्सप्लोजिव एक्सपोर्ट होता है दूसरे देशों में, उसकी भी टेस्टिंग यहाँ की जाती है, परमिटेड एक्सप्लोजिव्स की। सो ऑल एक्सप्लोजिव्स व्हिच इज यूज्ड इन द कंट्री have been tested here and certified from this laboratory, from this institution, from the scientists of this lab, as well as जो जितने भी permitted detonators होते हैं वो इसी लैब में टेस्ट किए गए हैं, और यहाँ के सर्टिफिकेट के आधार पर ही उनको अप्रूवल मिला है, तभी सेफ
सेफली आप काम कर पाते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, जो इसमें बहुत सारे ऐसे भी कार्य हैं जो मैं अभी मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि समय का शॉर्टेज है। बट जब आप लैब विजिट करिएगा तो आप लोगों को ज्ञान होगा कि किस किस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं और हमारा भविष्य में क्या क्या प्लान है, ताकि हम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बन पाए और मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को हम सक्सेस कर पाए। और विश्व गुरु बनने में आप लोगों की भागीदारी होगी, हम भी कुछ योगदान कर रहे हैं, बट बाई 2047 2047 तक आप लोगों की जो विद्यार्थी हैं उनकी भागीदारी बहुत ज्यादा होगी। हम लोग तब तक तो रिटायर हो गए रहेंगे, लेकिन आप लोग रहेंगे और आप ही लोग रहेंगे जो इस देश को और इस शक्ति को विश्व गुरु बनाने में अपना सहयोग देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः प्रवीण जी का स्वागत करता हूं, आप सभी का इस प्रांगण में स्वागत करता हूं। और आपकी जो भी जिज्ञासा हो, जो भी क्वेरी हो, जो भी डाउट हो, फील फ्री टू आस्क। there will be in the all labs, scientists are there, technical staff will be there who will be helping you around to respond to your queries, to your doubts. इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद एवं आप सभी का पुनः स्वागत हो। धन्यवाद। Thank you so much for your motivating speech, sir. You have already showcased that what we are doing at CSIR-CIMFR. लेकिन इसके बावजूद CSIR-CIMFR के बारे में कुछ और जानने के लिए हमारे पास वीडियो क्लिप्स हैं, तो मैं आग्रह करूंगा ऑर्गेनाइजर्स से कि उन्हें प्ले करें ताकि बच्चे देख सकें। प्रकृति ने झारखंड राज्य को अनुपम सौंदर्य के साथ साथ बहुमूल्य खनिज संपदा से परिपूर्ण होने का भी अखंड सौभाग्य प्रदान किया है। इन खनिज संपदाओं के समुचित उपयोग हेतु तत्कालीन प्रमुख दूरदर्शी विचारकों ने झारखंड स्थित धनबाद में 2 CSIR संस्थानों को स्थापित करने का निर्णय लिया। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान की आधारशिला अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के तत्कालीन माननीय मंत्री श्री CH भाभा, कार्य खनन तथा विद्युत विभाग द्वारा 17 नवंबर 1946 को रखी गई थी। तदुपरांत भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कर कमलों द्वारा डिगवाडीह धनबाद में 22 अप्रैल 1950 को संस्थान के भवन का उद्घाटन किया गया। इस गौरवमय क्षण में माननीय राष्ट्रपति जी के साथ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, नोबेल पुरस्कार विजेता सर CV रमन, डॉक्टर मेघनाथ साहा, CSIR के पहले निदेशक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं अनेकों प्रतिष्ठित अतिथिगण उपस्थित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपने उद्बोधन में इस प्रयोगशाला की महत्ता पर बल देते हुए अधिक से अधिक कोयले को वैज्ञानिक पद्धति से कोक में परिवर्तित करने हेतु आह्वान किया। उन्होंने बताया कि ऐसा करने से कोयले के सभी उत्पादों का समुचित उपयोग हो पाएगा तथा इससे ईंधन उद्योगों और अंततः देश के विकास में सहयोग मिलेगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने उद्घाटन संबोधन में अनुसंधान के लिए एक सुव्यवस्थित संस्थान की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि मानव ही है जो विज्ञान का प्रयोग और उपयोग करता है, ईंट और कंक्रीट नहीं, परंतु आधुनिक उपकरणों से युक्त सुंदर कार्यस्थल निश्चित तौर पर विज्ञान को नए आयाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः विज्ञान की प्रगति हेतु आधुनिक प्रयोगशाला धनबाद में निर्मित करने का निर्णय लिया गया। खनन एवं संरचना संबंधी क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास द्वारा सहयोग प्रदान करने हेतु 10 मई 1956 को केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई और धनबाद में एक नए परिसर में कार्य प्रारंभ किया गया।
CSIR के 2 प्रमुख संस्थानों CFRI एवं CMRI की मूलभूत क्षमताओं को एकीकृत करते हुए 2 अप्रैल 2007 को CSIR केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान CSIR CIMFR का गठन किया गया ताकि अन्वेषण, खनन, उपयोगिता और पर्यावरण को सम्मिलित करते हुए संपूर्ण कोयला आधारित ऊर्जा श्रृंखला के लिए अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा सके। The establishment of CSIR-Central Institute of Mining and Fuel Research took place following the amalgamation of the central expertise of both the Central Fuel Research Institute and the Central Mining Research Institute, along with their regional centers situated in Nagpur, Bilaspur, Roorkee, Ranchi, and Raniganj. CSIR-Central Institute of Mining and Fuel Research has concentrated its R&D endeavors on the subsequent focal areas, namely clean coal technologies and uses of transformed version of coal with syngas, methanol, liquid petrol results in minimal carbon emission. CSIR-CIMFR has developed and installed an indigenous 1.5 TPD oxy-blown PFBG pilot plant and established gasification of high-ash Indian coal under the aegis of Niti Aayog. The syngas generated from PFBG pilot plant is suitable for various downstream applications. Further, to generate the methanol from syngas, the Institute has achieved expertise in the area of catalysts and process development at bench scale level for downstream modules including syngas microcleaning, water gas shift reaction, CO2 capture, and syngas to methanol, and other chemicals. Conversion of inferior coal to high-energy coal coke through beneficiation by recovery of carbon values from carbonaceous and washery tailings and reducing the environmental pollution by treating the coal slurry tailings by beneficiation and creating value-added product. Developed cost-effective technologies to make domestic coal useful to steel plants. In this direction, the Institute has developed a non-recovery type heat recovery coke making technology with stamp charging and coke quenching which can accommodate Indian coals with inferior coking properties. The technology has been commercialized and transferred to Kudremukh Iron Ore Company Limited, Mangalore for 0.18 NTPA coke production and Institute is also getting royalty. The technology has also been transferred to 20 more different companies in last 2 years. Several indigenous guidelines, norms, formulations, mining methods developed by the Institute are being widely used by the Indian mining industry for the underground extraction of coal and metalliferous deposits under different geomining conditions to increase production, productivity and safety of underground mines. Study is being carried out for development of coal mine methane resource, methane emission inventory and emission factor for coal mine and oil and gas sector. The development of infrastructure sector is considered as a precursor in boosting the economy of a country. Accordingly, the Institute has developed a specialized controlled blasting technique for safe and efficient rock excavation works in metro rail projects, highways, railways, hydraulic tunnels and land development for construction of airports. The developed technique is capable of dealing with many site-specific constraints such as blasting in the close proximity to the house's structures, blasting for slope stabilization, directional controlled blasting with minimal blasting hazards. The strategically important border roads of the Indochina and Indo-Pak borders in ecologically fragile hilly terrain have been completed with a faster and safer way with the intervention of CSIR-CIMFR developed controlled blasting techniques, which has been acknowledged by the Border Roads Organization. Waste to wealth creation by utilizing mill tailing and slag for paste backfilling in underground metalliferous mines, it would be great benefit to the entire mining,
mineral processing and metallurgical industries. Thank you. Uh, I think that you might have got some input regarding CSIR-CIMFR, and you will get detailed input during your lab visit. Now, I would like to request Madam Mayuri Dutt, who is National Coordinator and a resource person of India International Science Festival, to present about IISM programs. Madam, please. Very good morning to the guest, my colleagues, all the children, and everyone present in the August House. We all heard from Director Sir all about ISF as well as the Institute, which is today hosting you here. Dear children, members, whosoever is present here, we all know that it's going to be the 9th edition of ISF, the full form of which is India International Science Festival. One of its kind festival which is happening in the country, that is India. Herein we get people connected with science, those who have feelings towards science. They all come together to enjoy this huge festival, which it started its journey way back in 2015. The concept of India International Science Festival came in the mind of Vigyan Bharati, an organization which actually is working for the people of the country in connection with Science India movement. When in 2015, in IIT Delhi, this ISF was conducted, they came up with very unique idea of having various programs which will actually encourage children, students, scholars to come and mingle with others, as Director Sir was telling. So in 2015, we had a very good response. We continued, and in 2016 again, it was conducted in NPL Delhi, and therein Guinness World Records were created. Children had come, they came together, they dressed up like Einstein, and a Guinness World Record came into existence along with India International Science Festival. 2017, India International Science Festival, first time went out of the city where its inception, it was introduced, and went to IIT Madras, and therein we really could feel its spirit, its temperament, and the urge for people to come and join us. 2017, once again, Guinness World Records were created, and many other programs were added. 2018, in IGP Lucknow, there was a wonderful program. When we proceeded towards Science City in 2019, Kolkata, there for the first time, 4 Guinness World Records were created, and in addition to the new programs were added. And the most inspiring program in 2019 ISF was that we had a wonderful exhibition wherein the tankers had joined in all the way from various cities. So this was something which children got the opportunity and audience got the opportunity to see what is happening all across the country in respect of the improvement and the work of R&D laboratories. Pandemic hit, and we thought, what should we do? But IISF organizers as well as the ministry did not keep quiet, and they decided of holding the first ever online science festival of the world. Why I'm actually putting more press on, I'm pressing on this is because we're very proud to announce that ISF 20
20, being on virtual platform, created Guinness World Record by having 1.2 lakhs visitors in 5 days. And we could create a Guinness World Record. That is our great achievement. And the journey begins. We had one in NCPOR in Goa. And last one in 2022, the 8th one was held in Bhopal. The upcoming one is going to be held in Faridabad from January 17 to 20. Dear children, we know that this is an outreach program, and in this outreach program, we would like to inform you all about this particular event. But the people present here are a handful of people. Now, what duty can you do is you can become our brand ambassador by telling others. Because when Sir asked you, do you know about ISF? No one could say yes. Was there anyone who knew? कोई जानता था कि ISF कौन क्या है? नहीं जानते थे. आज जब हम आपको बता रहे हैं तो हमारी एक ही अपेक्षा है कि आप इस ISF के बारे में सबको बताएं. अगर इस साल आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं नहीं, अगले साल इसको I think there is some problem with the इस साल इसको ज्वाइन करने के लिए आप कोशिश करिए. ये एक कोई प्रॉब्लम है सर? या आई कुड. ये ऐसा इनिशिएटिव है जिसकी स्टीयरिंग कमेटी में और हमारे डायनामिक लीडर प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर लीडरशिप और हमारे सारे मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स सब इसमें हमको इसके व्यापार के बारे में हमें एक्चुअली वो एडवाइस देते हैं. इसमें सारी इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर्स हैं. इस प्रोग्राम कमेटी में जाने माने लोग हैं जो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को उस ऊंचाई तक ले जाने चाहते हैं जहां हर कोने में ये मैसेज जा सके कि इस तरह का एक कार्यक्रम इंडिया में हर साल होता है. जैसे कि आपने सुना इसमें 16 आयाम हैं. जिस 16 आयाम को मैं एक एक करके आपको बताऊंगी. द फर्स्ट इवेंट इज स्टूडेंट साइंस विलेज. इस स्टूडेंट साइंस विलेज में इस बार हम बॉर्डर स्टेट्स के बच्चों को इनवाइट कर रहे हैं. बच्चे अपने स्टेट से, अपने स्कूलों से नॉमिनेट होके हमारे पास आते हैं. दे स्टे फॉर अराउंड 2 to 3 days, समटाइम्स द एंटायर पीरियड ऑफ ISF. इस पीरियड में बच्चों को हर तरह की साइंस से रिलेटेड कार्यक्रम उनको दिखाए जाते हैं. लेक्चर्स होते हैं, हैंड्स ऑन स्किल होती है. दे गेट द अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट बिकॉज दे कम फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री. The students who join in Science Village program are actually from state board schools nominated by the MP of that particular state. And these children sometimes travel to such places for the first time in life. तो बच्चों को वहां लेकर आना, उन्हें रखना, उनको एंजॉयमेंट कराना और फिर बच्चे अपने अपने मेंटर और टीचर के साथ वापस जाते हैं. इस कार्यक्रम को सारे NIF नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इस पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहा है. और आप सब जानते हैं कि उनका सबसे बहुत बड़ा फेमस प्रोग्राम है इंस्पायर मानक अवार्ड. शायद आपने उसमें ज्वाइन किया है. आर यू अवेयर ऑफ इंस्पायर मानक अवार्ड? किसी बच्चे ने उसमें ज्वाइन करा है? कोई हाथ उठा सकते हैं आप? But you are only knowing about it. It's a very beautiful program. The second program is face to face with new frontiers of science and technology. ये 17, 19 और 20 तारीख को होगा जहां एमिनेंट साइंटिस्ट बच्चों के साथ इंटरैक्ट करेंगे. और ये NCR और फरीदाबाद के बच्चों को इसमें इनवाइट करा जाएगा एंड दे विल बी पार्ट ऑफ इट. इसमें करीब 3,500 बच्चे 3 दिन आएंगे और इसमें ज्वाइन करेंगे. Science through games and toys is another initiative of in ISF. इस कार्यक्रम में साइंस बिहाइंड गेम्स एंड टॉयज के विषय में चर्चा होगी. आजकल ये सब्जेक्ट ज्यादा हमारे NEP के बाद सबकी टीचर्स के नॉलेज में है कि कैसे हम गेम्स एंड टॉयज के माध्यम से साइंस आप लोग को जॉयफुल लर्निंग सिस्टम से पढ़ा सकें. इस कार्यक्रम में वी आर गोइंग टू हैव वेंडर्स जो अपने इस तरह के टॉयज को शोकेस करेंगे. और इस कार्यक्रम में अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है. अगर आप किसी भी साइंस से रिलेटेड गेम्स एंड टॉयज के बारे में जानते हैं या उनके जो बनाते हैं उनके बारे में जानते हैं तो उनको आप बोल सकते हैं. इस कार्यक्रम में अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है, वो ज्वाइन कर सकते हैं.
ये सारे जो कार्यक्रम हैं इनमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं और सारे ऑर्गेनाइजेशन में मेन ऑर्गेनाइजिंग पार्टनर है आपके NIF एंड विभा. इन एडिशन टू दैट साइंस थ्रू गेम्स एंड टॉयज में हमारे साथ इसरो भी है. आई एम वेरी हैप्पी टू से कि मैं इस पर्टिकुलर कार्यक्रम की एक रिसोर्स पर्सन हूँ. इसके अलावा हमारे पास स्टूडेंट्स इनोवेशन फेस्टिवल स्पेस हैकाथॉन है जिसमें आप सब अभी भी जुड़ सकते हैं. ये 20 तारीख को इसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने वाला है. So if you are interested कि आप किसी भी तरह ISF में जुड़े, so make sure that you check the website and register yourself through Space Hackathon for which the registration is still open. इसमें एक ऑनलाइन कार्यक्रम है, उसके बाद फिर ऑफलाइन बच्चों को इनवाइट करा जाएगा जिनका ट्रैवल और स्टे एंड हॉस्पिटलिटी will be taken care of the organizations. The next is Vigyanika. This is Science Literature Fest. हमने दूसरी फेस्ट देखी है जहां बाकी चीजों के विषय में जानकारी दी जाती थी बट साइंस के इस तरह से कोई कार्यक्रम भारत देश में नहीं होता था. तो ISF 2018 में साइंस लिटरेचर फेस्ट का इंट्रोडक्शन हुआ और इस बार भी ये कार्यक्रम है जिसमें पोएम के माध्यम से, कार्टून ड्राइंग के माध्यम से, कविता और कव्वाली के माध्यम से साइंस के विषय में चर्चा होती है एंड वेरियस बुक्स and periodical connected with science is kept there. This is the most important and much awaited program जो इस बार इसका इंडक्शन होगा. इसका नाम है ISF चैलेंज. आज तक हम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करते थे बट इस साल से ये ISF चैलेंज शुरू हो रहा है जिसमें इस बार करीब 2000 बच्चे एक साथ मिलके एक चैलेंज प्लेस करेंगे जिसको सारी दुनिया को इनवाइट करके कहेंगे उसको ब्रेक करने के लिए. दिस विल बी आवर पायनियर प्रोग्राम and we look forward to achieve it and we want to let the world know about it. This challenge is going to happen on 18th. It will be live. Definitely I would ask you all कि जो जहां पर भी हो कोशिश करें जुड़ने के लिए और इस ISF चैलेंज के विषय में जरूर जानकारी लेकर इसको आगे बढ़ाएं. Another program is Education for Aspiring India, that is National Science Teachers Workshop. We invite teachers from teaching fraternity कि आप आए और हमारे इस प्रोग्राम में ज्वाइन करें जिसमें काफी चर्चाएं होती हैं. सारी एजुकेशन बोर्ड लाइक CBSE, NCERT और केंद्रीय विद्यालय सब जगह से बड़े बड़े मान व्यक्ति एजुकेशनिस्ट आते हैं और विषय के ऊपर चर्चा करते हैं. और इस समय हम सब जानते हैं that it is the NEP which is actually giving us some kind of feeling that what it is, how it is to be implemented, and the talk will be based on that. Young Scientist Conference registration is still open. 15 तारीख तक इसका रजिस्ट्रेशन ओपन है. अगर कोई भी इसमें ज्वाइन करना चाहता है और अपना किसी तरह का पोस्टर प्रेजेंटेशन है और किसी तरह का वो अपना कार्य दिखाना हो या किसी से जान पहचान करना चाहता है जैसे सर ने कहा, कम फॉरवर्ड एंड लुक एट द वर्ल्ड व्हाट पीपल आर डूइंग सो दैट यू कैन एक्सेल, learn and do something extra. So इस कार्यक्रम में आप लोग आ सकते हैं या आप किसी को अगर जानते हैं, let them know that in ISF the registration for this particular program is open, which is all about Young Scientists Conference. It is up to the age of 45. New Age Technology Show is also a unique program which gives us the idea about what is happening in our country. This program is actually participated by very less number of people. ये एक शुरुआत है और इसमें हम वो सारी चीज़ों को शो करते हैं जो हमारे लिए साइंटिफिक अचीवमेंट्स हैं और जो हमारे रिच कल्चरल हेरिटेज को आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया का शोकेस करती है. नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशन मीट. आप हमारे देश में काफ़ी NGOs हैं वो तरह के कार्यक्रम करते हैं तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म में दे कम टुगेदर, दे डिस्कस and they come up with various new programs and concepts so that some kind of changes can be brought to our country through these social organization. And this is a wonderful one where maximum people join in and they showcase to what they are doing for the country in the country.
साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एग्जीबिशन इज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। इस एग्जीबिशन में हर जगह से, हर कोने से लोग अपनी एग्जिबिट लेकर आते हैं जो इनोवेशंस होते हैं। और इस बार इंस्पायर मानक अवार्ड में जो बच्चों ने अपने इनोवेशन शोकेस करके अवार्ड जीते हैं, वो भी यहाँ पर इस एग्जीबिशन में अपना इनोवेशन शोकेस करेंगे। So there is no registration. The entry is free for locals. But if you want to join in, then I think their science innovation registration is open till 28th of December. So you can register yourself. SNT Media and Communicators Conclave is a very separate program which is unique, and it is limited to the who is who. So together they sit, discuss, and think about a better future. Number of participants are always limited, and there are lots of organizing team member and resource people who sit together to discuss and have very highly debated talks about it. There is SNT ministers and center state ministers official meet. This year we are expecting international ministers and premiers from all across the world, and probably this is going to be the best program in the journey of IISF for the last after the 8th edition. Startup and Technology and Innovations B2B Meet is also a beautiful program. In this particular program, we have discussions, talk about various business and various aspects and prospects in how we can promote science and technology. Women Scientists and Entrepreneur Conclave is exclusively for women scientists to encourage them, motivate them, and showcase their work, which is there being done by them. And every evening is going to have cultural events, but cultural does not mean that you're going to have filmy songs going on there. We are going to have programs connected with science. Science, you can say science programs like Nukkad Natak, there will be Kavi Sammelan, there will be dance. And now, since if you are CBSE students, you must be doing art integrated learning. You must be learning how to dance with maths. You can say maths figure, like geometry. You must be doing dance with solar, thinking about how you can learn about solar system of the world. So these are few things which are being incorporated, and we are going to be able to see the best of the performance. So this is all about India International Science Festival. I know you won't be able to or may not be able to join in this year, but this is to be informed to you. Get prepared and think about it for next year. Every person organized, prepares, and mentally prepare themselves to be part of it in one way or the other. And the gate is open for you all to think for coming here. And wherever I said, in games and toys for vendors, its registration is open till 15 December. For Space Hackathon, it is open till 20th December. Check the website. For Young Scientist Conference, registration is open till 15th. And New Age Technology as well, it is open till 20. So you can just let the message reach masses so that we can have more and more people joining in this particular program. And let's hope for a day when ISF can come to Jharkhand and they can really get the opportunity to enjoy more. Thank you very much. God bless you. Thank you so much, madam, for enlightening us with the programs of IISF. Now moving towards next, हमारे बीच श्री प्रवीण रामदास सर हैं, जो एक समर्पित समाज सेवक एवं पूर्णकालिक विज्ञान भारती के कार्यकर्ता हैं। सर, आप वर्तमान में राष्ट्रीय सचिव हैं विज्ञान भारती के। सर, आप प्लीज अपने उद्बोधन में। बहुत बहुत धन्यवाद। CSIR CIMFR के आदरणीय अध्यक्ष अरविंद मिश्रा जी, विज्ञान भारती के मेरे सहयोगी बहन मयूरी दत्ता जी, CIMFR के आदरणीय साइंटिस्ट डॉक्टर JK पांडे जी, इस शोध संस्थान के वैज्ञानिक गण, इस सभागार में उपस्थित शिक्षक एवं विद्यार्थी भाइयों बहनों, पूर्व वक्ताओं ने बहुत सुंदर तरीके से
इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के बारे में बताया। और आदरणीय निदेशक साहब ने आईएएसएफ के साथ साथ इस शोध संस्थान आपके साथ क्या करते हैं इसके बारे में भी उन्होंने बताया कि उन्होंने एक चीज बोला था कि आप लोगों से शुरू करते हुए कि धनबाद में भी बहुत सारे लोग जानते नहीं है कि सीएसआईआर धनबाद में किस तरह के शोध होता है। और ये भारत में हर तरह, हर जगह, हर विज्ञान के शोध संस्थानों के साथ है कि विज्ञान, हम हर बार सोचते हैं कि विज्ञान एक बहुत ही कठिन विषय है, और विज्ञान में बारे में सोचता है तो ज्यादातर विद्यार्थियों के मन में एक रुचि से ज्यादा एक डर का भाव पैदा होता है। इसलिए 2014 में जब नए सरकार आए और डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने एक प्रपोजल सबके सामने रखा कि विज्ञान को लोकव्यापीकरण होना चाहिए, और उसके साथ साथ समाज का, सिर्फ विद्यार्थियों का नहीं, पूरे समाज के अंदर विज्ञान को लेके एक रुचि, एक पैशन क्रिएट करना है, तो इस तरह का एक कार्यक्रम होना चाहिए। तो उस समय बहुत सारे नाम के बारे में सोचा, तो आपने देखा होगा कि इसका नाम जो है फेस्टिवल है, उत्सव है। और हम ज्यादातर विज्ञान के कार्यक्रम के देखते हैं तो बोलते हैं उसमें आता है समिट, साइंस कांग्रेस, तो उसमें लोगों को थोड़ा डर लगता है। लोगों को लगता है कुछ सीरियस बातें हो रहा है, सीरियस चीज हो रहा है जिसमें सिर्फ वैज्ञानिक ही जा सकता है, या विज्ञान में बहुत अच्छे करने वाले विद्यार्थी ही जा सकता है। तो आईएएसएफ का एक उद्देश्य ये है कि समाज की हर व्यक्ति को विज्ञान के साथ जोड़ना, और उनके मन में ये विज्ञान को लेके एक पैशन क्रिएट करना, एक रुचि खड़ा करना, ये इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का एक सबसे बड़ा उद्देश्य है। मयूरी जी ने बताया कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में समाज की हर तरह के लोगों को हम बुला रहे हैं, वो चाहे छठवीं से लेके जो विद्यार्थी है, और पॉलिसी मेकर जो इस देश के अंदर विज्ञान को लेके बहुत सारा पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, उनको भी, माने विद्यार्थी से लेके युवा वैज्ञानिक से लेके महिला वैज्ञानिक से लेके इवन इस देश के अंदर जो एक तरह से ग्रामीण क्षेत्र में इनोवेशंस, नवाचार ये करने वाले लोगों को भी, जो किसान है, कारीगर है, पर इनके मन में कुछ आइडियाज है, उस आइडियाज को वो साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसे लोगों को भी इस तरह के उस कार्यक्रम में बुला रहा है। माने कि समाज के अंदर के हर तरह के लोगों को, उनके जीवन में विज्ञान है। हमको लगता है कि विज्ञान सिर्फ शोध संस्थानों में नहीं है, हमारे खेत के किसान के पास भी विज्ञान है, हमारे गांव में जो जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के हाथ में भी विज्ञान है, हमारे घर में खाना बनाने वाले माताओं के पास में भी विज्ञान है। उनको पता है कि गर्मी के समय पे क्या, किस तरह के खाना बनाना है, ठंड के समय पे भी कैसे खाना बनाना है, और ज्यादा खाना खा लिया तो उसको पचने के लिए क्या देना है, ये हमारा घर के अंदर के महिलाओं का, हमारे माताओं को पता है। तो समाज के अंदर एक वैज्ञानिक समाज है हम हमारे, और उस वैज्ञानिक समाज के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति को एक प्लेटफॉर्म में लाना, और उनको आधुनिक विज्ञान के साथ और जोड़ना, और उनके अंदर जो ज्ञान है उसको और अच्छे से करने के लिए भारत सरकार ने इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जैसा कार्यक्रम शुरू किया। मयूरी जी ने आपको सबको फरीदाबाद में स्वागत किया, और आप सब लोगों से यह भी बोला कि धनबाद में या झारखंड में ये जल्दी आ जाए, क्योंकि आप सब लोग उस कार्यक्रम में भाग ले। तो एक सच्चाई है कि इस पूरे भारत में एक इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल अपने पूरे उद्देश्य को एक कार्यक्रम से नहीं कर सकता। इसलिए हमने आउटरीच प्रोग्राम्स का भी एक श्रृंखला बनाया है। आउटरीच का उद्देश्य यही है, हमारे आसपास के वैज्ञानिक संस्थान में क्या कार्य चल रहा है इसके बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। ये जो शोध संस्थान है, इधर वैज्ञानिक काम आप ही लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? देश के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं। तो उस तरह की वैज्ञानिक संस्थानों में जाना, वहां पे क्या हो रहा है उसको देख के एक वैज्ञानिक जिज्ञासा हमारे मन में पैदा करना, और उस कार्य के साथ कहीं ना कहीं जुड़ने का
जिनके रुचि है, ऐसे लोगों का करने का एक कार्य आउटरीच से होता है। आज भारत सरकार के लगभग 200 लेबोरेटरीज में आउटरीच प्रोग्राम हो रहा है, सब लोग जा रहे हैं। मैंने अभी आदरणीय डायरेक्टर साहब को बताया कि एक बार भोपाल में आदरणीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री आया था, उन्होंने एक 2000 विद्यार्थियों के बीच में पूछे कि एक लेबोरेटरी का नाम लिए पूछा कि आपको पता है कि ऐसे एक लेबोरेटरी भोपाल में कार्य करते, विद्यार्थियों को पता ही नहीं था। तो हमको कहीं ना कहीं शोध संस्थानों के साथ जुड़ना चाहिए। उसके लिए आपको इधर आना भी चाहिए और इधर के वैज्ञानिकों को आप तक इसके बताने का एक, यहाँ पे क्या होता है वो आपके लेवल पे या आपको जैसे समझ सकते हैं उस तरह बताने के लिए वैज्ञानिक भी तैयार होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस आउटरीच प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य यही है कि विज्ञान, इस तरह की विज्ञान हमारा क्षेत्र में अपना आसपास किस तरह की शोध हो रहा है, इसके बारे में हम सबको जानकारी मिलना चाहिए, वहाँ का वैज्ञानिकों को रूबरू होना चाहिए। तो एक आईएएसएफ एक मूवमेंट जो शुरू हुआ है, आईएएस सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, ये एक लोकव्यापी विज्ञान की लोकव्यापीकरण का एक बहुत बड़ा एक अभियान है भारत सरकार का। इस अभियान को समाज के नीचे तक पहुंचाने के लिए, इस अभियान को पूरे भारत में पहुंचाने के लिए भारत की हर संस्थान में, हर स्टेट्स में सीएसआईआर की लेबोरेटरीज है, नहीं तो डीएसटी की लेबोरेटरीज है, नहीं तो डीएई की लेबोरेटरीज है, नहीं तो इसरो की लेबोरेटरीज है। इस तरह की लेबोरेटरीज एक दिन के लिए विद्यार्थियों के खुलते हैं, विद्यार्थी आते हैं, वह वहाँ का क्या क्या अचीवमेंट्स हैं वो देखते हैं। तो विज्ञान में जो भी भारत का एक तरह के योगदान है, उसका एक उत्सव जैसा मनाना है। हम सब लोगों को पता है कि अभी हाल ही में ही इसरो ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, एक बहुत बड़ा उपलब्धि हुआ, क्या है? चंद्रयान। हमको पता है कि दुनिया में यूट्यूब में सबसे ज्यादा लाइव कोई भी कार्यक्रम देखा है तो वो चंद्रयान का वो जो लैंडिंग का प्रोग्राम था। क्यों? हमारे लिए एक गर्व की भावना था, क्योंकि हमारा भारत एक बहुत बड़ा एक वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल कर रहा है। पर सिर्फ चंद्रयान नहीं, इस तरह की बहुत सारा वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं भारत का। सीएसआईआर का हर लेबोरेटरी का कुछ ना कुछ वैज्ञानिक उपलब्धि है, हर आईआईटी में कुछ ना कुछ वैज्ञानिक उपलब्धि है। ये सबको उत्सव जैसे मनाना और इस देश की वैज्ञानिकों को एक तरह से रेस्पेक्ट देना और उनके कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए हम सबका स्नेह उन सबको मिले, ये आईएएसएफ का मुख्य उद्देश्य है। तो मैं आप सबको इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। बहुत सारे लोग वहां पे पहुंच नहीं पाएंगे, जैसे मयूरी जी ने बताया कि लाइव प्रेजेंटेशन से और ऑनलाइन मीडियम से आप लोग इसको देख सकते हैं। तो आईएएसएफ के लिए और आईएएसएफ के साथ साथ अपने क्षेत्र की वैज्ञानिक संस्थानों के साथ आपके साथ जोड़ने का ये एक प्रक्रिया है, ये इसके साथ लगातार जारी रहे। और मैं इस शोध संस्थान के आदरणीय डायरेक्टर और बाकी वैज्ञानिकों से बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मुझे पहली बार धनबाद में आना, और मैं बहुत बार CSIR सिम्फर को सुना था, जब एक बहुत बड़ा अटल टनल, जो आप सब लोगों ने सुना है कि अटल टनल को तो हमने सुना है कि भारत का एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल है। उस अटल टनल में भी कहीं ना कहीं सीएम एक तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो कैसे उसके माइनिंग कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे जो इस कार्य को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस तरह का एक बहुत अच्छा कंसल्टेशन, इसमें एक बहुत अच्छा योगदान सिम्फर के वैज्ञानिकों का था। तो मुझे एक बार मैं इसको विज्ञान भारती के साइंस इंडिया में पढ़ा, तो हमारे से कितने लोगों को पता है कि हमारा धनबाद की एक शोध संस्थान ने इतने बड़े एक वैज्ञानिक उपलब्धि में हमारा एक पार्ट हमारा धनबाद की शोध संस्थान का था। जब हमको अगर ये पता चलता तो हमको धनबाद को लेके, धनबाद की सिम्फर को लेके एक गौरव की भावना होगा। तो हमारा वैज्ञानिक उपलब्धियों को एक उत्सव जैसे मनाने के लिए हम सब लोगों ने मिलके आईएएसएफ का योजना किया है। इस एक महत्वपूर्ण शोध संस्थान में मुझे बुलाने के लिए और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सौभाग्य देने के लिए मैं इस शोध संस्थान के पूरे लीडरशिप को धन्यवाद देते हुए मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ। वंदे भारत मातरम।
धन्यवाद सर, आपके उद्बोधन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Now I would like to request our director sir. Now it's the time to felicitate our guests. So I would like to request our director sir to felicitate chief guest Sri Parveen Ramdas sir with solemn memento. I would also like to request director sir to felicitate Madam Mayuri Dutt with solemn memento. Thank you, sir. I would like to just announce that in this successful event today, we have with us almost 250 students and teachers. Moving ahead, I would like to invite Dr. J.K. Pandey sir to propose a hearty vote of thanks. Sir, please. धन्यवाद हिमांशु। आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि श्री प्रवीण रामदास जी, मैडम मयूरी दत्त जी, हमारे निदेशक प्रोफेसर ए.के. मिश्रा सर, सभागार में उपस्थित हमारे कलीग्स और बच्चों की पूरी एकदम फौज रंगारंग एकदम बच्चों की दिख रही है, पूरा खचाखच भरे हैं। हम लोगों की अपेक्षा से ज़्यादा है, हम लोग जितनी कैपेसिटी से जितना बुलाए थे उससे ज़्यादा, इट्स मोर देन 100% प्रेजेंस। वी आर रियली थैंकफुल फॉर दैट। तो इस धन्यवाद ज्ञापन के इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम हम अपने आज के मुख्य अतिथि प्रवीण रामदास जी का आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने जैसा कि उन्होंने खुद ही कहा, वो हम लोगों से बहुत सिम्फर से बहुत दिन से जुड़े हैं, वे सिम्फर को जानते हैं, विज्ञान भारती से जानते हैं, सिम्फर की उपलब्धियों से परिचित हैं, लेकिन उन्हें ये पहला मौका था जब वो यहाँ आए। हम आपके इस पहले मौके पर आने के लिए विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं और आपका धन्यवाद देते हैं सर। मैडम मयूरी दत्त हमारी एक रिसोर्स पर्सन है। कल भी एक हमारे एक स्टेट लेवल कैंप हुआ था जिसमें विद्यार्थियों का, जिसमें बहुत सारे बच्चे भाग लिए थे। आप कल भी हमारे लिए एक नेशनल कोऑर्डिनेटर, वीवीएम के नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में थी। आज आप आईआईएसएफ के रिसोर्स पर्सन के रूप में हमारे साथ आई और आपने अपने इस आईआईएसएफ के इस अनूठे कार्यक्रम में जितनी सारे कार्यक्रम है उसको पर विशेष रूप से एक प्रेजेंटेशन दे करके हम लोगों को पूरा अवगत कराया कि क्या क्या कार्यक्रम किस तरह हो रहे हैं सारे बच्चों को। और साथ में महोदय मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये प्रोग्राम हमारा चूंकि यूट्यूब ऑनलाइन है, इसलिए ऐसा नहीं कि हम खाली ये 300-400 बच्चों तक पहुंच रहे हैं। बहुत सारे लोग हमें हमारे रीजनल सेंटर्स में देख रहे होंगे और सारे जितने भी हमारे यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं आज देख रहे होंगे, कल भी देखेंगे, क्योंकि यूट्यूब पर तो चीज़ें रहती ही हैं। आप सभी लोगों का एक तरह से हम अपने सारे ढेर सारे बच्चों का धन्यवाद देते हैं और आप लोगों से इस आने के लिए हमें बड़ा खुशी हुई, इसलिए आपको उनका धन्यवाद। कोई भी कार्यक्रम एक दिन एक 2 घंटे का कार्यक्रम भी होता है तो इतनी आसानी से और सिंपल ढंग से नहीं होता, उसमें बहुत सारी टीम हमारी लगती है और उस टीम का उस टीम को चलाने के लिए एक कुशल नेतृत्व चाहिए।
और वो नेतृत्व हमारे निदेशक महोदय से हमेशा प्राप्त होता रहा है और इस कार्यक्रम के लिए भी प्राप्त हुआ है। इसलिए हम अपने निदेशक का भी, प्रोफेसर A.K. मिश्रा का भी हार्दिक अभिवादन करते हैं और धन्यवाद देते हैं। अब इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए बहुत सारी कमेटी मेंबर्स हमारे साथ काफ़ी दिन से काम किए हैं। करीब 30-40 लोगों की हमारी टीम है। पूरा उन्होंने हर विभाग में अपना बच्चों को लाना, आयोजन करना, खान पान व्यवस्था, कोई बच्चों का असुविधा ना हो, ये सब चीज़ के लैब विजिट आज तक के लिए सब पूरे हमारी एक टीम है जिसने काम किया है 40-50 लोगों की। उन सभी का एक विशेष तौर पर हमारी जो HRD की टीम और IT टीम, ये मुख्य रूप से एकदम से फ्रंट एंड सपोर्ट हमारा किसी चीज़ के किसी कार्यक्रम के लिए रहता है। और उन सब पूरी टीम को एक बार पुनः धन्यवाद जिन्होंने बहुत अच्छा भरसक प्रयास करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और हमारा ये प्रोग्राम जो करीब 2 घंटे का ऑनलाइन प्रोग्राम है और ये 2 घंटे का ये स्टेज प्रोग्राम है। इसके बाद बच्चों को हम लोग अपने लैब विजिट कराएंगे और पूरा मतलब फर्स्ट हाफ का ये एक तरह से ओपन डे सेशन हमारा है। और फाइनली जैसा कि हम लोग बार बार हमारे हर वक्ताओं ने कहा, ये आउटरीच प्रोग्राम है, यानी हम IISF के गवर्नमेंट के इस प्रयास को साइंस के जनमानस तक पहुंचाना है। तो जितने को हम पहुंचा पा रहे हैं पहुंचाएंगे, बाकी का ये बड़ा दायित्व अपने प्रेस और मीडिया पर है। तो हमारे कुछ लोग बैठे हुए हैं, उन सब का विशेष धन्यवाद और एक तरह से अभी रिक्वेस्ट कि वो इसको जितना प्रचारित कर सकें ताकि ये लोगों को ये महसूस हो सके कि हमारा सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से कैसे जनमानस की समस्याओं को सॉल्व कर रही है, कैसे हल कर रही है, कैसे उसके लिए दिन रात प्रयास कर रही है। इसलिए अपने प्रेस और मीडिया के लोगों का भी हम धन्यवाद देते हैं। और फाइनली अच्छा कंपेयरिंग करने के लिए हिमांशु जी का धन्यवाद। थैंक यू सर, आपको धन्यवाद ज्ञापन देने के लिए विशेष धन्यवाद। अब मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि राष्ट्रीय ज्ञान के स्वागत में अपने जगह पे खड़े हो जाएं। तब सुबह नामे गंगे, तब सुबह आशीष मांगे, गाए जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य जय There is one small announcement. There is arrangement of refreshment, snacks and tea for students and teachers.